The next is of incomplete dominance. Incomplete dominance, we see experiments of Mendel when the one gene reacted together, that is capital T cross with the small t in F1 generation, always tall traits or tall height is observed. But this character of F1 generation is not seen in all cases. If we see in dog flower color, that is Antirrhinum flower, or we can see snapdragon. The two types of flower present in the snapdragon, that is red flower and another is of white flower. Red flower is due to capital R gene, and white flower, that is the recessive gene of small r. It produces gamete that contain only R, capital R gamete. It produces which contain small r gametes. Here, if cross pollination is made between them or hybridization is there, in F1 generation, that is capital R small r is of genotype, and the phenotype is not red and nor white. The phenotype is of in between, that is of pink, color. यहाँ पर जो F1 जनरेशन का फिनोटाइप आता है, न तो रेड आता है नहीं वाइट आता, वो पिंक आता है. और अब सेल्फिंग कराई जाती है F1 जनरेशन में कैपिटल R स्मॉल r क्रॉस विथ कैपिटल R स्मॉल r. दैट टाइम it produce 4 different types of genotype we found with the help of checkerboard device, that is capital R small r, capital R small r, here capital R, here capital R small r, here capital R small r, either here small r. If we see the genotype ratio, that is capital R ratio capital R ratio small r small, this is 1:2:2. That genotypic ratio is 1:2:1. Or if we say phenotypic ratio, that is again 1 is of red, 2 is of pink, and 1 is of white. Again 1:2:1. Here in the incomplete dominance, that genotypic ratio and phenotypic ratio will be same, that is 1:2:1. And the characteristics of F1 generation is of not dominant nor recessive. इन दोनों का बीच का आता है इंटरमीडिएट कलर आता है, that's why it is known as incomplete dominance. If we see what is the reason behind the incomplete dominance, क्या कारण होता है कि न तो कंप्लीट जो डोमिनेंट कलर आता है नहीं रिसेसिव कलर यहाँ आता है. यहाँ इसके पीछे 3 रीजन हो सकते हैं. नॉर्मली यहाँ जो 2 जीन है कैपिटल आर स्मॉल आर, तो नॉर्मली दैट कैपिटल आर विल प्रोड्यूस नॉर्मल एंजाइम. कैपिटल आर हमेशा नॉर्मल एंजाइम या नॉर्मल कलर का नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस करेगा और उस नॉर्मल एंजाइम की वजह से नॉर्मल कलर दिखाई देगा. बट द स्मॉल आर में बी produce 3 types of effect, that is of normal or less efficient enzyme, या तो नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस कर सकता और लेस एफिशिएंट, यानी एफिशिएंट है परंतु उसकी एफिशिएंसी कम है, तब नॉर्मल कलर ही दिखाई देगा, दैट इज ऑफ रेड. और 2 कंडीशन ऐसी होती है जिसमें स्मॉल आर दैट मे बी प्रोड्यूस नॉन फंक्शनल जीन और नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम, या तो ऐसा एंजाइम प्रोड्यूस करे जो फंक्शनल नहीं होता है या ऐसा एंजाइम प्रोड्यूस ही एंजाइम नहीं करता. एट दैट टाइम दैट विल बी अफेक्ट द फिनोटाइप ऑफ F1 जनरेशन. तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में यही होता है, या तो ये नॉन फंक्शनल जीन प्रोड्यूस कर रहा है और या फिर कोई नॉन फंक्शनल जीन जो जिससे कि नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस होता है या कोई एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होता है, उसकी वजह से F1 जनरेशन का फिनोटाइप अफेक्ट हो जाता है और यहाँ पर दोनों का इंटरमीडिएट कलर आ जाता है.
दैट इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसमें जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो ऑलवेज सिमिलर होता है, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस. Now another example of one gene inheritance, that is codominance. Codominance means whenever the two different genes present in any enzyme, they represent their means both the genes represent their characters. किसी ऑर्गेनिज्म में दो जीन जो है प्रेजेंट है, वो दोनों ही जीन उसके अंदर अपना इफेक्ट शो करते हैं, उसको कोडोमिनेंस यानी साथ साथ अपने दोनों का इफेक्ट करते हैं, उसको कोडोमिनेंस कह सकते हैं. इसका बेस्ट एग्जांपल होता है एबीओ ब्लड ग्रुप. ह्यूमन बीइंग ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाय द थ्री जीन्स, दैट इज IA जीन, IB जीन एंड IO जीन. इफ यू सी the cross between two parents 1 and parent 2, and this is the offspring genotype, and what will the blood group of offspring? Suppose if parent having IA and both the genes made up from IA and parent 2 is made up from again IA, that time offspring blood group is of genotype is of IA and blood group is of A. In second case, if the parent 1 is of IA and parent 2 is of IB, that time genotype of offspring, that is IAIB, and blood group is of AB. In third case, if the parent is of IA and parent 2 is of I0, that time of genotype is of I0 and blood group is of A. In third case, parent 1 is of IB, parent 2 is of I0, the genotype of offspring is of IB, IO, and blood group is of B. In the next case, vice versa, this one is of IB और this one is of IA. जैसा यहाँ इसमें हुआ उल्टा हो गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे IA, IB और ब्लड ग्रुप इज ऑफ AB. इसी तरह से ये भी अगर उल्टा हो ये भी उल्टा हो जाता है तब भी ये ब्लड ग्रुप रहेगा, ये भी उल्टा हो जाता है तब भी B blood group होगा. If the both the recessive gene is there, IO or IO, that time genotype is of IO and blood group is of O. Here we can see these are the three genes responsible for the blood group, that is IB, IA and IO, where IA and IB is of dominant genotype and IO is of recessive genotype. Whenever both the dominant genotype come together, जब IA और IB दोनों dominant genotype साथ साथ आते हैं, just like in IA and IB, the genotype is of offspring is of IAIB and the blood group is of AB. परंतु जब यहाँ दोनों एक ही आ रहा तो सिंगल आएगा ब्लड ग्रुप ऑफस्प्रिंग का, ये IA तो A होगा. इसी तरह से दोनों का अगर IB है, सपोज ये बात करें IB है, इधर भी IB है, तो ये क्या हो जाएगा IB और ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप B हो जाएगा. परंतु या तो IA है या IB है, उसके साथ दूसरा I0 आ रहा है. I0 इज ऑफ रिसेसिव ब्लड ग्रुप. तो ऐसी कंडीशन में जो ब्लड ग्रुप होगा वो या तो अगर IA आ रहा है तो क्या होगा A होगा, IB आ रहा है तो B होगा, बिकॉज IO is of recessive gene in the presence of IA and IB. तो यहां अपन कह सकते हैं कोडोमिनेंस को मतलब साथ साथ, जब दो जीन जो कि दोनों ही अपने आप को डोमिनेंट जीन कहते हैं, दोनों ही साथ साथ होते हैं तो वो दोनों ही अपना इफेक्ट साथ साथ दिखाते हैं. जब A डोमिनेंट जीन और B डोमिनेंट जीन दोनों ही साथ साथ आते हैं तो दोनों ही का इफेक्ट होता है और ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप AB होता है. परंतु
अगर तीसरा जीन आ जाता है यानी IO या तो IA के साथ है तो A ब्लड ग्रुप होगा, IB के साथ है IO तो B ब्लड ग्रुप। परंतु अगर वो दोनों में ही सेम है IO तब ब्लड ग्रुप क्या होगा, O ब्लड ग्रुप होगा। दैट इज द दिस इज द एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस एंड द ह्यूमन ब्लड ग्रुप इज एग्जांपल ऑफ वन मोर types that is known as multiple allelism. मल्टीपल एलिलिज्म। हम जानते हैं कि एक जो पेयर होता है जीन पेयर, जैसे कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल p, दीज आर द टू एलील्स। तो हर कैरेक्टर्स के लिए दो एलील्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। They may be both the dominant, both the recessive, or one dominant and one is of recessive. These are the alleles. Two alleles is there. Sometimes that one character is responsible for the more than two alleles. That is known as multiple alleles. Like human blood group, which is responsible for more than two alleles. That is three alleles. Out of these three alleles, one is IA, another one is of IB, another one is of IO. So human blood group is responsible for on the three alleles, that is IA, IB and IO. That's why it is also example of multiple allelism. तो human blood group दो का एग्जाम्पल है। एक तो कोडोमिनेंस यानी दोनों डोमिनेंट जीन एक साथ आते हैं तो दोनों का इफेक्ट होता है, A और B तो AB ब्लड ग्रुप होगा। दूसरा एग्जाम्पल है मल्टीपल एलिज्म का, यानी इसके तीन एलील होते हैं ह्यूमन ब्लड के, IA, IB और IO। दिस इज द गुड एग्जाम्पल फॉर कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल एलिलिज्म। अभी हमने एक जीन वन जीन इनहेरिटेंस के दो तीन एग्जांपल देखे। एक तो डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा देखा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तीसरा देखा दैट इज ऑफ कोडोमिनेंस, फोर्थ देखा मल्टीपल एलिलिज्म, and one more example is of polygenic inheritance. Polygenic inheritance, poly means more than one, or gene. Suppose a single characters or one characters is controlled by more than one gene. That is known as polygenic inheritance. जिसको अपन मल्टीपल एलिलिज्म, तो वहां क्या है, एक ही जीन के एक से ज्यादा एलील है। जीन तो एक ही है आई जीन, जब उसके तीन एलील है दैट इज IA, IB और IO, ये अलग चीज है। और ये अलग चीज है जीन, यानी सपोज कलर, स्किन कलर एग्जांपल है, ट्रेट क्या है, स्किन कलर, इसके लिए तीन जीन रेस्पॉन्सिबल होते हैं, A जीन, B जीन और C जीन। मीन्स सपोज वन कैरेक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन वन जीन। जब एक सिंगल ट्रेट, सिंगल कैरेक्टर एक से ज्यादा जीन के थ्रू कंट्रोल हो रहा है तो उसको कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसका एग्जांपल होता है स्किन कलर ऑफ ह्यूमन बीइंग स्किन कलर इज कंट्रोल्ड बाय द थ्री जीन। लाइक दैट साइज ऑफ grain, it is also controlled by the more than one gene, that is of polygenic inheritance. One more example of that is one gene inheritance, that is of pleiotropy. ये आपके जो लास्ट में पेजेस है बुक के अंदर वहां पे मिलेगा, फ्रंट में, बीच में नहीं है। प्लियोट्रोपी बाद में एडिशन किया गया था इसको। प्लियोट्रोपी क्या होता है, इसका
जस्ट अपोजिट होता है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है? व्हेन द सिंगल कैरेक्टर्स कंट्रोल बाय द मोर देन वन जीन, दैट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। यहां पे जस्ट अलग है, व्हेन वन जीन कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर। in the human beings, that is known as प्लियोट्रोपी। when one gene, एक ही जीन की वजह से एक से ज्यादा करेक्टर कंट्रोल होते हैं, उसको प्लियोट्रोपी। इसका बेस्ट एग्जांपल देख सकते हैं अपन सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, इसमें क्या होता है, एक अभी इसी चैप्टर में आगे लास्ट में आएगा इसकी डिटेल। इसमें एक सिंगल जीन चेंज हो जाता है, और सिंगल जीन चेंज होने की वजह से जो आरबीसी होती है वो क्या होती है, सिकल सेप्ड हो जाती है। आरबीसी सिकल सेप्ड होने की वजह से इसकी ऑक्सीजन को ट्रैप करने की एफिशिएंसी कम हो जाती है। उसकी वजह से ऑक्सीजन को ट्रैप करने की एफिशिएंसी कम हो जाती है, तो हिली रीजन पर जहां पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है वो आदमी प्रॉपर सर्वाइव नहीं कर पाता, उसमें एनीमिया हो सकता है, बहुत सारे दूसरे करेक्टर शो होते हैं। बट दैट ऑल द करेक्टर इज ड्यू टू वन जीन। एक जीन की वजह से बहुत सारे कैरेक्टर्स अफेक्ट होते हैं, दैट इज नोन एज प्लियोट्रोपी। तो दोनों वाइस वर्सा है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जिसमें एक कैरेक्टर बहुत सारे जीन से कंट्रोल होता है, प्लियोट्रोपी जिसमें एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, दैट इज द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। द नेक्स्ट कैरेक्टर्स और नेक्स्ट टॉपिक इज ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन।